Okay, so let us start with our new session. Fine. So I welcome you all to Pinnacle Guidance Tutorials. As you can see, that we are going to start our new series on time and work questions. Time and work. Yes, when I tell you what is time and work is one of the most important and a bit more tricky. Fine. From the section when compared to other sections, it's a bit more tricky, right? But yes, I really promise you that each and every type of questions I'll be going to solve in this on this channel. So yes, let us start with our session. And yes, please do like, share and subscribe the channel, and hit the bell icon to get the notification when I come up with new videos. Fine. So time to move on with our first question. So here's the first question for you. So you have 1 minute to solve this question. I'm going on mute. Time's up. So fine, come, let's discuss the question. Okay, so after reading the question, let me turn to the point. So after reading the questions, you can have an idea that 50 gallons of water is that what this water tank can hold. Okay, and an inlet pipe is given of 3.5-inch diameter with its efficiency is 2.5 gallons per minute. Fine. So basically you can at least count this total inlet time. Fine. So how will you count that inlet time? Inlet time will be 50 gallons, fine, upon 2.5 gallons per minute. That will give you 20 gallons. If there's no if there's no outlet pipe, let us assume, then the and only no leakage, no outlet, no nothing. If and this inlet pipe is opened fully, then in 20 minutes this 50-gallon water tank will fill using this pipe. Okay, so next is, here's a concept that is hidden in this next line. Line is the outlet of the tank is twice the diameter of the inlet. Fine. So when you say, okay, so I should move on to the answers. Fine. So the outlet of the tank is twice the diameter of the inlet. That here you can see that this diameter, okay, it's is directly proportional to 2.5 gallons to the rate of water by which the pipe is either inletting it or going out of. Fine. So when you see this, the tank the tank is the outlet of the tank is twice the diameter. So this diameter is twice. So what will be this raise will also what will be the rate of this outlet pipe will become twice this inlet pipe rate. Right. So the rate of the outlet pipe rate will be 2 multiplied by 2.5, if I'm not wrong. Fine. So the outlet will be 5
5 gallons per minute, no issues. So the total outlet time, or how many minutes will it take to empty the tank if the inlet is closed? So the total outlet time will be 5 is the 50 gallons of water that has to be taken out from the water tank, fine, and divided by the rate of the outlet pipe. What will be the rate of the outlet pipe? As the diameter is twice, so the rate of that outlet pipe will be 2.5 into 5. So 50 gallons divided by 5 gallons per minute will give you 10 minutes. And yes, this is our answer. Okay, fine. So moving on with the next question. And yes, before moving on, if you have any doubt regarding any questions and any theories related to time and work, so please do let me know in the comment section below, or you can directly mail me in the on the mail that is been given to you in the video description, fine. And please, just one thing I want from all you is just like, share as much as you can share this video, so that anyone who cannot afford tuition and coachings and all, so can be helped from these videos, right? And subscribes the channel, right? So moving on with the next question. Yes, you have 1 minute to solve the question. Fine. So yes, moving on with the answers. Okay, so I'm going to tell you one of the most basic thing and most important thing that you have to apply if you want to solve your time and work questions easily, quickly, and yes, correctly. That's the most important thing when you have a paper of negative marking included. Fine. Okay, so moving on with the questions. So first of all, you have to define some work. Okay, and now you are assuming how did I define this 48, because 48 is something like very odd number. Fine, you can, I could have easily taken 10, 100, 1 even, fine, but why did I take this 48 units? Now if you see carefully, what is 48? 48 is divisible by 16 also. 48 is divisible by 24. Fine. So basically, whenever we'll be going through any questions, the first thing is that if we can assume the total work done, okay, then we have to take a number like 48 over here, which is LCM of all the time taken by each person, man, pipe, anything. Fine. Okay, so now we are taking, and yes, we are going to work on efficiency and not on time, because if you want to solve any time and work question, you have to work on efficiency, not on time. Fine. So moving on with efficiency of leakage, let us assume it is minus x units per hour. Fine. So what will be the efficiency of pipe A? It is given A and B can fill the empty tank in 16 and 24 hours respectively. Fine. So it's 48 by 16 is 3 unit per hour, and what is the efficiency of pipe B is 48 by 24, that is 2 unit per hour. Fine. Raja opens these two pipes after 8 by 3 hours. Okay. He comes back and sees there was a leak in a tank. Fine. This leakage has the efficiency of minus x as we have assumed. Fine. So this leakage
X plus this A and B pipe will be continuously opened for 8/3 hours. Fine. So for 8/3 hours, fine, and extra he closed the leakage, so tank took 48/5 extra hours. After this, after taking 8/3 hours, the tank took extra 4.48/5 hours. In this 48/5 hours, leakage is closed, but A and B are opened. Fine. So the total work done by pipe A is pipe B is 2 plus 3 is this addition of this efficiency because both work together. Fine. Total time is 8/3. 8/3 is when leakage was also opened, plus 48/5, the extra 48/5 hours. Fine. So the total work done by leakage will be equal to leakage is opened for only 8/3 hours, so minus X into 8/3. Fine. So the total work done will be equal to 2 plus 3 total work done will be equal to total work done by pipe A and B plus total work done by the pipe leakage, which is equal to 48 units of work. Fine. So we are going to add these two equations and equate to 48. Okay. Fine. So 2 plus 3 multiplied by 8/3 plus 48/5 minus 8x/3 is equal to 48. This X is 5 units per hours. Fine. And so the time taken by leakage, and the next question is, the actual question is, find at what time the leakage will empty the filled tank. Fine. So the emptying the filled tank will be, it's like it has to do 48 unit of works. Efficiency is 5 units per hour. Fine. So 48/5 will give you time, because work is equal to efficiency into time. Fine. So what is time is equal to total work upon total time. It's the only leakage that is open, so इसी को सारा काम करना पड़ेगा. तो टोटल वर्क कितना हुआ 48 बाय इसी एफिशिएंसी हम लोगों ने इस इक्वेशन के हिसाब से निकाली, कितनी 5 हो गई. तो 48/5 कितना आया 9.6 आवर्स. अगर कोई डाउट हो सो कमेंट सेक्शन में लिख दो या मुझे मेल कर दो, मैं आपका क्वेरी डाउट सॉल्व कर दूँगा. ठीक है, नो इश्यूज़. बस इसको लाइक शेयर कर देना प्लीज़. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, you are getting 1 minute to solve this question out. फाइन, चलो रिज्यूम करते हैं, आंसर्स डिस्कस करते हैं. ठीक है. सो आंसर क्या होगा, फिर यहाँ पे तुमको क्या दिया गया है, एक काम दिया गया है, टाइपराइटर ABC है. ठीक है, कुछ उसको बहुत बड़ा काम करना है इन तीनों को इंडिविजुअली. उनका दिया A 12 घंटे में कंप्लीट कर देता है, B 15 घंटे में कंप्लीट कर देता है, C 18 घंटे में कंप्लीट कर देता है. 12 आवर्स, 15 आवर्स, 18 आवर्स रेस्पेक्टिवली फॉर A, B एंड C. फाइन. ठीक है, अभी बस इतना ही क्वेश्चन है. तो हम लोगों ने, मैंने लास्ट में क्या बताया था कि अगर ऐसे टाइम दिया हो दो अलग अलग पाइप्स का, यहाँ पे देखो पर्सन्स का, तो हमको क्या करना है, यस एज्यूम करना है वर्क. ठीक है. तो यहाँ पे वर्क एज्यूम में मैंने अभी पिछली बार मैंने 48 कैसे एज्यूम किया था, इनका कोई मल्टीपल एज्यूम किया था, दोनों से डिवाइड हो जाए. फाइन. तो यहाँ से 12, 15 और 18 से डिवाइड होने वाला कोई एक ऐसा नंबर,
या बोल दो सीधे 12, 15, 18 का एलसीएम ले लो, ठीक है। सो 12, 15, 18 का एलसीएम ले लिया तो टोटल वर्क हम लोगों को एज्यूम कितना होगा 180। फाइन, चलो टोटल वर्क कितना एज्यूम हो गया 180, ठीक है। उसके बाद क्या है हम लोग का एक ही एफिशिएंसी, मैंने क्या बताया था, वर्क डन इसी टोटल वर्क डन। अभी क्या क्वेश्चन में आया था, क्वेश्चन में ये आया था कि ये इंडिविजुअली सब लोग एक राइट कर रहे हैं वर्किंग एलोन, तो यहाँ पे क्या है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इसको टाइम कितना लगा था 12 लगा था ए को टाइम, ठीक है। तो 180/12 कितना हो गया 15 यूनिट पर आवर, ये इसकी एफिशिएंसी होगी। वैसे ही बी की एफिशिएंसी भी हम लोग निकाल सकते हैं 180/15, क्योंकि इसको 15 घंटे लगे थे बी को। अब सी की भी वही सेम आ जाएगी, सी की भी कैसी आ जाएगी 180/18 मतलब 10 यूनिट पर आवर, 18 घंटे की इसने काम करने में लगाए थे, ठीक है। सो अब हम लोग को निकालना क्या था, क्वेश्चन था व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टाइम। देखो अब रेशियो पूछा गया तो इसका मतलब कोई यूनिट नहीं आएगी, ऑफ टाइम इट टेक्स टाइपराइटर ए टू द जॉब वर्किंग अलोन, मतलब जो ये 12 घंटे लेता है डिवाइडेड बाई टू द टाइम इट टाइपराइटर बी एंड सी वर्किंग टुगेदर एट देयर इंडिविजुअल रेट, मतलब बी और सी साथ में काम कर रहे हैं और ए अकेला काम कर रहा है, तो इन दोनों का रेशियो पहले ए कितना टाइम लगेगा डिवाइडेड बाई बी और सी दोनों कितना टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो ए कितना टाइम लगाएगा वो तो हमको डायरेक्टली पता है 12 है 12 आवर्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था टोटल वर्क कैसे होता है, टोटल वर्क इज़ इक्वल टू यहाँ पे देखिए टोटल वर्क डन बाय कोई भी 2 पर्सन इज़ इक्वल टू उन लोगों की एफिशिएंसी प्लस हो जाती है और टोटल टाइम उन लोगों ने साथ में कितना गुजारा है, ठीक है। फाइन, तो हम लोग को निकालना क्या है, ये टोटल टाइम उस क्वेश्चन में निकालना है, ये टोटल टाइम निकालना है हम लोग को। तो टोटल वर्क तो हमको ये पता है कि ये बी और सी मिल के पूरा साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 180 पूरा इनको काम करना पड़ेगा, पहली बात। उसके बाद एडिशन ऑफ दोनों की, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी एडिशन में आ जाएगी, तो 12 + 10 ये कितना हुआ 22। जब आप इसे सॉल्व करोगे आर से आर कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा, आ जाएगा 22/15। ऐसे ही देख लो 12 को 180 से डिवाइड करते हैं 15 आता है, और ये 12 + 10 22 हो जाता है, तो 22 ऊपर आ गया 22/15, ये आपका टाइम का रेशियो आ गया, ठीक है। प्लीज़ कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, या फिर मुझे मेल कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Last 10 seconds. ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन एक और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा टाइम एंड वर्क का, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले क्वेश्चन तो रीड कर लो। क्वेश्चन क्या है कि 4 बॉयज़ 3 वुमेन एक साथ। अब देखिए यहाँ पे 4 बॉयज़ दिए हैं 3 वुमेन दिए हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये एज्यूम करना पड़ेगा कि हर एक लड़के की वैल्यू लड़के के हिसाब से सेम होगी। अगर एक कोई लड़का कुछ 4 ईंटें ही सिर्फ उठा रहा है एक दिन में,
तो वो चारों लड़के मिल के 16 ईंटें उठाएंगे, हर एक लड़का 4 ईंटें उठाएगा। ऐसा नहीं कि एक लड़का 5 उठाया, दूसरे लड़के ने 6 उठाया, तीसरे लड़के ने 3 उठाया, एक लड़के ने 9 उठा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। 4 लड़के हैं, चारों 4 ईंटें उठाएंगे, सब 16 काम करेंगे। वैसे ही इन वुमेन में भी यही है कि सबका हर वुमेन का अलग अलग नहीं होगा, हर वुमेन की एफिशिएंसी विल बी सेम। फाइन। तो हम लोग का क्वेश्चन ये आ गया, ये 4 बॉयज़ डिनोट क्या करता है? 4 बॉयज़ ये डोनेट करता है, तो 4 इंटू बॉयज़ की एफिशिएंसी, ठीक है। 3 वुमेन क्या दे रहे हैं? 3 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? वर्क क्या होता है? टोटल एफिशिएंसी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यह आपका टोटल वर्क दे देगा, ठीक है। अब वहीं एक और क्वेश्चन दी गई है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क, वाइल लिखा है ना, वाइल मतलब सेम अमाउंट ऑफ वर्क, सेम पीस ऑफ वर्क। ये 2 बॉयज़ 4 वुमेन 9 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। देखना, बॉयज़ की एफिशिएंसी मैंने मान ली B, वुमेन की एफिशिएंसी मैंने W, ठीक है। मैंने वही चीज़ बोला था, सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये 6 दिन तक 4 लड़के और 3 महिलाएं काम कर रही हैं, ठीक है। तो 4 बॉयज़ प्लस 3 वुमेन, फाइन। एंड इफ़ यू गो ऑन विथ सॉरी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, सॉरी, ठीक है। कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज, ठीक है। 4 बॉयज़ 3 वुमेन 6 दिन में काम जो कर रही हैं, तो 4 बॉयज़ 3 वुमेन ने टोटल एफिशिएंसी आ गई, मल्टीप्लाई बाय 6 दिन, ठीक है। ये 9 दिन का काम हो रहा है, और 9 दिन में काम कितनी एफिशिएंसी से किया जा रहा है? सिर्फ 2 लड़के कर रहे हैं और 4 महिलाएं कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारी एक ये क्वेश्चन आ गई, इन दोनों का काम सेम है क्योंकि यहाँ पे लिखा गया सेम पीस ऑफ वर्क, फाइन। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करो, 24B 18W, W क्या है? वुमेन की एफिशिएंसी, B क्या है? बॉयज़ की एफिशिएंसी। यहाँ पे क्या 18B प्लस 36W, जब इसको अब ये आ जाएगा, ये चीज़ को इधर ले जाओ और ये चीज़ को वुमेन वाली को इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 6B इज इक्वल टू 18W। तो हमें आ गया एक लड़का 3 वुमेन के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है, एफिशिएंसी। तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि B को 3 मान लो, तो W को कितने वैल्यू हो जाएगी? 1, ठीक है। हम लोग को क्या पता है कि टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क इधर आप इधर से भी कैलकुलेट कर लो या इधर से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। मैं इधर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। 6, अब 4 इंटू 3 12, और 3 इंटू 1 3, तो 12 प्लस 3 15, 15 इंटू 6 90। अब आप बोल रहे हो यहाँ से कैलकुलेट कर दो, ठीक है। 3 2 या 6, और ये क्या है? 6, 4 इंटू 1 4, तो 6 प्लस 4 10, और 10 इंटू 9 होता है 90, ठीक है। अब हमारा आया, हाउ मच टाइम विल 7 बॉयज़, मतलब ये देखिए 7 बॉयज़ की एफिशिएंसी, उसमें ऐड कर दो 9 वुमेन की एफिशिएंसी, ठीक है। ये वही तो कर रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं कि B और C टुगेदर काम करते हैं। ये देखें, B और C टुगेदर। तो यहाँ पे क्या है कि 7 लड़के हैं, तो 7 तुम अलग अलग B1 B2 B3 B7 तक कर लो, और सबकी एफिशिएंसी सेम। वैसे ही वुमेन की भी कर दो, W1 W2 W9 तक सबकी एफिशिएंसी सेम, तो वही काम कर रहे हैं। टोटल वर्क 90 आ गया। अब कितने बोले गए? 7 बॉयज़ बोले गए, ठीक है। और बॉयज़ की एफिशिएंसी थी कितनी? सॉरी, बहुत लंबी स्लाइड है इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 7 इंटू 3 आ गया, ठीक है। अब बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो और लड़के कितने हैं? 7 काम करने के लिए, तो 7 इंटू 3 आ गया। ये कैसे आया? 9 वुमेन दिया गया, और वुमेन की एफिशिएंसी हमको पता है कितनी है? 1, ठीक है। तो 90/30, क्यों 21 प्लस 9 30 होता है, 3 डेज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट आप लीजिए, सॉल्व करिए।
Last 10 seconds. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। सारे मैं कॉन्सेप्ट वाइज ला रहा हूँ सो दैट आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाओ, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। बस आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इसे जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, जो भी किसी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल बैंक में से एसबीआई पीओ और ये वैसे सारे क्वेश्चन जितने भी मैं उठा रहा हूँ सब बैंक के पीओ एसबीआई के आईपीपीएस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्लर्क के हुए या कोई अगर डिफेंस हो आप तो फिर आई नेट है, सीटीएस है, एफकैट है, वहाँ सारे आते हैं। ये सारे एमबीए में भी ये आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल। आपसे बस इतना ही मेरा वो है। ठीक है, चलो क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। देखिए अब फिर से वही चीज़ आने लगी। और बी कैन डिस्ट्रॉय, तो वहाँ पे हम लोग को क्या था, लीकेज में हम लोगों ने क्या लगा दिया था, माइनस। अब माइनस क्यों लगाया था, क्योंकि वो काम जब आप करते हो तो कुछ पॉजिटिव में कर रहे हो, अब आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि नल खुला है और नल से लीक हो रहा है, दोनों अलग अलग चीज़ें। वो खाली कर रहा है तो आपका वर्क वो बढ़ाता जा रहा है, और वो भर रहा है तो वो वर्क कम करता जा रहा है, टोटल वर्क, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो हम लोग अभी तक आपने इतना तो सीख लिया होगा कि टोटल वर्क हम लोग को इसमें एज्यूम करना पड़ेगा। अब आप बताओ टोटल वर्क कितना एज्यूम करोगे। 8 ये दिया है, 3 ये दिया है, तो इसका एलसीएम कितना है, सही बोला, बिल्कुल सही, 24, करेक्ट। सीख के देखो आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो बोल रहा है यहाँ से, जो क्वेश्चन ही देख लेते हैं। अब ए की एफिशिएंसी निकल आएगी। ए की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, 24 यूनिट्स ऑफ वर्क आपने किया है, 8 days आपको लगते हैं, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया -3 यूनिट पर डे। ठीक है, अब बी डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, तो 24 यूनिट्स डिवाइड बाई 3 days, वो यूनिट्स हैं, डेज कटा हुआ है, तो वो -8 यूनिट पर डे। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, ए 6 दिन का काम कर चुका है, फिर 6 दिन के बाद, ठीक है, क्या बोल रहा है, जैसे 6 दिन का काम पूरा ए ने किया। ठीक है, फिर उसके बाद 4 दिन, जैसे 4 दिन हुए ए के काम के, 4 दिन हुए, तो कितना वो ए और काम करेगा, 2 दिन और काम करेगा। ठीक है, तो आखिरी 2 दिन में बी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि कितना काम और ए करेगा, कितने दिन उसको और करेंगे टोटल ए काम कंप्लीट होने में। ठीक है, बहुत ईजी, अभी करते हैं। 24 रिमेनिंग वर्क क्या होता है, रिमेनिंग मतलब होता है पूरा में से कुछ कम। ठीक है, तो पूरा तो ये बताइए, पूरा तो यही था 24। ठीक है, फाइन। अब टोटल किया, कितना काम किया है, 6 दिन इसने काम किया है अपना बनाने में, ए का एफिशिएंसी। अब ये अभी तो प्लस आएगा क्योंकि वो तो बी इसके साथ है, बी की एफिशिएंसी नहीं, और डिस्ट्रॉय कर रहा है इसलिए -8 है। ठीक है, तो कुछ इसने घटाने में भी काम किया। ठीक है, फाइन। तो 24 - 6 × 3, 6 × 3 कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, अब आप चाहोगे बी की एफिशिएंसी डालो, -8 आ रही है। ठीक है, तो अब क्या, 18 - 16, तो कुल मिला के उसने 6 दिन में 18 काम किया था, 18 यूनिट का काम किया था, और उसने आखिरी के 2 दिन में 16 यूनिट का काम खराब कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के कितने यूनिट का काम
ए और ये बी ने मिल के किया है 6 दिन में 2 यूनिट का काम, ठीक है। तो बचा कितना काम, 22 यूनिट। मतलब सिर्फ 6 दिन के बाद ए और बी ने अगर साथ में, जिसमें से आखिरी 2 में ही सिर्फ 6 ने बी ने काम किया है, उसमें काम कितना हुआ 2 यूनिट, और वो 6 दिन के बाद बचा कितना है 22 यूनिट। अब वो बोल रहा है टोटल टाइम ए नीड्स मोर, कितना समय ए चाहता है, ए कितना चाहता है, ए चाहिए और कितना चाहिए, रिमेनिंग टाइम कितना है 22 यूनिट है, ठीक है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ देखो। अब यहाँ पे बी नहीं आएगा क्योंकि इसने बोला है हाउ मेनी टाइम ए नाउ वर्क एलोन, एलोन मतलब अब बी काम नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ ए की एफिशिएंसी, ठीक है, और 3 यूनिट पर डे, यूनिट से यूनिट कटा तो कितना है 7/3 डेज, बस बस, ठीक है। तो अब आपसे कंक्लूजन में बस इतना ही है कि जहाँ जहाँ हो सके अपना एज्यूम करो वर्क, ठीक है, वर्क एज्यूम करो। कैलकुलेशंस सिंपल बनाओ, जैसे मैंने कितनी सिंपल कैलकुलेशन बने, कैसे कैलकुलेशन सिंपल बना सकते हैं, ऐसे वर्क एज्यूम करके, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 100 कर लेता तो 100/8 पॉइंट में चला जाता, कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाती। आंसर वही आना है तो कैलकुलेशन इजी के साथ ले आए, जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी पे हमेशा देखो, मैं एफिशिएंसी पे काम करूँगा हमेशा, किसी में भी क्वेश्चन में देख लो मैंने एफिशिएंसी पे काम किया, मैंने कोई क्वेश्चन पे टाइम पे नहीं किया, गलत होता है, ठीक है। और ये देखो ये क्या है, हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन जो उठाया था ये क्या था, यहाँ पे क्या हो रहा था कि राजा ओपन्स, ठीक है, वो जो सॉरी ये वाला नहीं, कहाँ गया, हाँ ये वाला, तो उसमें था कि यहाँ पे ट्वाइस द टाइम मीटर, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जैसा जैसा ये टाइम मीटर दिया है तभी तो इसका मतलब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि छोटा होगा तो इसका मतलब तो है कि कम पानी आएगा, और बड़ा होगा तो इसका मतलब और ज़्यादा पानी, इसका मतलब ये ट्वाइस बड़ा हुआ है तो इसका रेट भी कितना हो जाता है 2 टाइम्स, फाइन। ऐसे आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये तो बस एक क्लास 1 है, कॉन्सेप्ट भी आपके खूब सारे क्लियर हुए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर मेल कर दीजिएगा, लिंक के डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल है। एंड यस, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। यस, प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके शेयर कर देना, सो दैट अगर किसी को नहीं कोई क्लास जा पा रहा है, किसी की ट्यूशन नहीं वो ज्वाइन कर पा रहा है, तो एटलीस्ट ये वाला चैनल देख के सीख सके, कुछ अपना काम कर ले। और ये ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फाइन। हैप्पी लर्निंग गाइस, एंडिंग द सेशन।